Now we will continue with the yesterday's lecture. I want to just explain to you some of the terms in very brief because I would be using these terms a lot, all right, while talking about CPC. So I want you to have an idea that what I am talking about. Some of the terms that I am explaining now, I will explain again later, like the terms cause of action and appeal, caveat. But some of the terms I will not explain again and again. All right. The reason is that I would be explaining CPC in a flow, and I would be using certain terms which are very essential for you to understand because CPC uses them. And since it uses them yet it does not explain them, then it becomes imperative that I should explain to you that what those terms mean in its proper essence, in its working essence. So you have a basic idea, okay? The CPC means this while it says that. All right. The first term that you should know is an affidavit. What is an affidavit? An affidavit is a declaration of fact reduced to writing and affirmed or sworn before an officer having authority to administer oath. Who's an authority to administer oath? It could be a judge, magistrate, public notary, etc. Whoever the legislature is appointed for that purpose. If you lie on an affidavit, then you know what happens. A prosecution for perjury, and if you are just adjudged guilty, then you can be punished for it as well. The next term that you should know is the term known as appeal. How do you define appeal? Appeal is a judicial examination of the decision by a higher court of the decision of a inferior court. It is the judicial examination of the decision by a higher court of the decision of an inferior court. In other words, the higher court or the superior court examines the decision of the lower court on facts and law and adjudges whether that decision is correct or not. Now, some things I want to tell you about appeal. There are some things that you should know. The first is the reason for existence of appeal is that it is the remedy provided by law for getting the decree of lower court set aside. Alright, that is why you appeal. You want to get the decree of the lower court set aside. The other thing that you should know about appeal is that the right of appeal is a creature of statute. Alright. Appeal is a right which can only be created by statute. There is a difference between a right which is created by statute, which is called a substantive right, and a right which is inherent right. Let me simply define it like this by a way of an illustration. Your right to go to a civil court is not a statutory right, it is an inherent right. If you have a cause of action, then it is your inherent right to go to a civil court. You do not need statute for that. But if you want to appeal against the decision of the civil court, then that right must be expressly conferred by the legislature on you. And if the right of appeal has not been conferred or has not been given, then in that case, you do not have a right to appeal. That is why it is called that the right of appeal is a creature of statute. And understand it that it can only be granted by the legislature, either parliament or the state legislature. However, to state it more accurately, I would say that the right of appeal embraces the aspects of both substantive law and procedural law. Then you should also know that once the right of appeal has been conferred on you, it can only be taken away by the statute, either by express provision or by necessary implication. अगर एक बार आपको स्टैट्यूट ने राइट टू अपील दे दिया तो उसको वापस भी स्टैट्यूट या लेजिस्लेचर ही ले सकता है, कोई भी अदर अथॉरिटी नहीं ले सकती. ठीक है. Once the right of appeal has been conferred upon you, it cannot be taken away by any other authority except by the legislature itself who granted you that authority. ठीक. The next term that you should know is cause of action. मैंने अभी यूज किया इस टर्म को. Now, cause of action may be described as a bundle of essential facts which it is necessary for the plaintiff to prove before he can succeed. ये definition as it is लिखिएगा एग्जाम में.
a bundle of essential fact which it is necessary for the plaintiff to prove before he can succeed. अब ये डेफिनेशन कोक वर्सेस गिल में दी गई थी. अभी देखिए जब मैं प्लेंट को डिस्कस करूंगा तब मैं एक बार इस पे केस लॉज फिर से बताऊंगा. अभी बस मैं डेफिनेशंस का आपको एक वर्किंग आइडिया दे रहा हूं, तो अभी आप इसको समझने पे ध्यान दीजिए. अब बहुत सिंपल तरीका है कॉज ऑफ एक्शन को समझने का, वो ये है कि आप कोर्ट के सामने क्यों हैं, आप क्यों किसी को सू कर रहे हैं. ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन, ये जो एक्शन ऑफ सुइंग है इसका कॉज क्या है, समझ रहे हैं आप. अगर आप टर्म कोई डिटेल में देखें तो आप खुद ही समझ जाते हैं ये क्या चीज है, फिर भी मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूं. देखिए अब मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है. बी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, कंप्लाई विद नहीं करता है, ब्रीच कर देता है उसका. ए जो है कोर्ट जाता है तो वो कॉज ऑफ एक्शन क्या बनाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ही विल सू फॉर डैमेजेस. यहां पे जो रिलीफ उसने क्लेम की है दैट इज डैमेजेस, बट वो सू किस लिए कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए. वैसे ही मान लीजिए सम पर्सन हैज कमिटेड एन असॉल्ट ऑन यू. ठीक, वो टॉर्ट भी है, वो क्राइम भी है. लेट अस फॉरगेट अबाउट द क्राइम फॉर अ मोमेंट. असॉल्ट हुई है, नाउ इट इज अ सुएबल टॉर्ट, इस पे यू कैन क्लेम डैमेजेस. ठीक, सो द कॉज ऑफ एक्शन वुड बी व्हाट, टॉर्ट ऑफ असॉल्ट, है ना, दैट वुड बी द कॉज ऑफ एक्शन. फिर रिलीफ क्या आप मांगेंगे, डैमेजेस. वैसे ही अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन के खिलाफ या प्लेंटिव के खिलाफ डिफेमेशन हुआ है, अब वो कोर्ट आया डिफेंडेंट को सू करने के लिए, तो कोर्ट अगर मान लीजिए उससे पूछेगा, वैसे ऐसा पूछता नहीं है, मैं बस आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि मान लीजिए मैं जज हूँ, आपसे पूछता हूँ कि वाई आर यू हियर, तो आपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन हमेशा लिखना जरूरी होता है, उसके बिना आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी. तो कॉज ऑफ एक्शन वहां पे क्या होगा, टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन. ठीक है, आप वो फैक्ट्स बताएंगे जिससे टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन बनता है. तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इज अ बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव बिफोर ही कैन सक्सीड. तो हमने अभी जितने भी अभी इलस्ट्रेशन लिए, अब मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर सू किया गया और प्लेंटिव ये साबित नहीं कर पाया कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो क्या उसे रिलीफ मिलेगी, नहीं मिलेगी. सो द बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट क्या हुआ, हर वो फैक्ट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करे. ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं प्रूव कर पाया तो हिज सूट विल बी डिसमिस्ड. वैसे ही जो टॉर्ट ऑफ असॉल्ट और टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन में अगर आप वो सारे एसेंशियल फैक्ट साबित नहीं कर पाए जो उसके एसेंशियल एलिमेंट हैं, तो क्या होगा, एज अ प्लेंटिफ योर सूट विल बी डिसमिस्ड. तभी इसकी डेफिनेशन ये दी गई है कि इट इज अ बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव बिफोर ही कैन सक्सीड. सूट में सक्सीड होना है, पहले जो क्या कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन है उसको आप प्रूव करिए. ठीक है, और कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर आपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, रिजेक्ट हो जाएगी प्लेंट, दैट इज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर कॉज ऑफ एक्शन इज द foundation of the suit. It is an event which precedes the institution of the suit. Cause of action कभी फ्यूचर में नहीं हो सकता, क्योंकि cause of action is the very basis on which the suit is filed. तो cause of action पहले होता है और उसके बेसिस पे आप सूट फाइल करते हैं. ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचिए, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो आप कोर्ट में जाओगे डिफेंडेंट के खिलाफ, वरना क्यों जाओगे. वैसे ही अगर मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ डिफेमेशन किया है, टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन कमिट किया है, तभी तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जाओगे टू क्लेम डैमेजेस, वरना क्यों जाओगे. सो द कॉज ऑफ एक्शन इज एन इवेंट व्हिच विल ऑलवेज प्रीसीड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ये मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है. तो अभी आपको कॉज ऑफ एक्शन मैंने लमसम समझा दिया है मोटा मोटा. और हमेशा याद रखिएगा, इफ द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन द कोर्ट विल ऑलवेज रिजेक्ट द प्लेंट, हमेशा रिजेक्ट हो जाएगी. द नेक्स्ट टर्म दैट यू शुड नो इज कैविएट. व्हाट इज अ कैविएट? इट इज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट टू द कोर्ट
that court should not take particular action without issuing notice to the party lodging the caveat and without affording an opportunity of hearing him. What is a caveat? It is an official request that a court should not take a particular action without issuing a notice to the party lodging the caveat and affording an opportunity of hearing him. कैविएट कहाँ पे? कैविएट है सेक्शन 148 ऑफ द सीपीसी में. ठीक है, इन सारी चीज़ों का अभी से ध्यान रखिएगा. मैं अभी सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूँ, अभी मैं उसके एलिमेंट्स में नहीं जा रहा. फिर नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड में वर्ड सिविल का क्या मतलब है. यहाँ पे जो सिविल शब्द यूज हुआ है, सिविल प्रोसीडिंग शब्द यूज हुई है सेक्शन 9 में, it would cover all the proceedings in which a party asserts civil rights which are conferred by any civil law in India. ठीक है, अभी हम लोग सेक्शन 9 पे आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीज़ों पे डील करेंगे. अभी बस ध्यान रखिएगा, सिविल का जो डेफिनेट कॉनोटेशन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल राइट्स. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. एंड सिविल का कॉनोटेशन एकदम अलग होता है, और सिविल का कॉनोटेशन बहुत वास्ट होता है. ठीक है. Then the term you need to know is the execution. What is an execution? Execution simply means the process of enforcing or giving effect to the judgment, decree or order of the court. ठीक, ये होता है execution का मतलब. Definitions पे ध्यान दीजिएगा. आपको ध्यान होगा, मैं हर सब्जेक्ट की शुरुआत में definition बताता हूँ, क्योंकि वो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए definitions पे खूब ध्यान दीजिएगा. The next thing that you need to know is an issue. Issue का क्या मतलब होता है? Issue in very simple terms means a material proposition of fact or law in a litigation which is affirmed by one party and denied by the other to the suit. ठीक है? And it is subject of final determination of the proceedings. इसको एक illustration के थ्रू समझाता हूँ. अब मान लीजिए ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है विद रिगार्ड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी नेम्ड एक्स. ठीक, ए कहता है मैं ओनर हूं, बी कहता है मैं ओनर हूं. ठीक है, दोनों के बीच में ये झगड़ा चल रहा है. तो यहां पे एक मटेरियल प्रोपोजिशन पे विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द लिटिगेशन, ए एंड बी आर बोथ अफर्मिंग देयर राइट टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नेम्ड एक्स. ये दोनों अफर्म कर रहे हैं. अब इसमें डिनायल क्या होगा? डिनायल ये होगा कि ए बोलेगा बी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आई एम. बी ये डिनाई करेगा कि ए इज नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, आई एम. तो इशू क्या बनेगा? इशू इज हु इज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ये बहुत सिंपली बता रहा हूं मैं, अभी मैं लीगल उसमें नहीं जा रहा कि लीगली कैसे इशू फ्रेम किए जाते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग यू दैट वे यूल अंडरस्टैंड इट बेटर. इशू ये होगा ना कि एक पार्टी कह रही है मैं ओनर हूं, दूसरी पार्टी कह रही है वो ओनर है, तो कोर्ट को जानना तो पड़ेगा ना कि वो इज अ रियल ओनर. सो दिस इज व्हाई इशू इज समथिंग और इट अराइजेस व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर. ऑलराइट, इसको दूसरी तरीके से समझिए. मान लीजिए ए जो है बी को सू करता है और बी की पोजीशन में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है. ए कहता है कि आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बी कहता है कि ए इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ए ने अफर्म किया कि वो प्रॉपर्टी मेरी है और बी ने उसे डिनाई किया. तो इशू क्या बनेगा? कोर्ट ये ढूंढने की कोशिश करेगा ना कि वो इज द रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और ये इशू बनाएगा इज ए द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी या who has the right to ownership of that particular property. इश्यूज किसी भी कई तरीके से बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, मेन मुद्दा क्या है? यहां पे एक सिंगल मटेरियल पॉइंट या मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ विच इज अ सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी. ठीक है, वंस दैट हैपेंस द इश्यूज अराइज. अब इशू तीन तरीके के होते हैं, द इशू ऑफ फैक्ट, द इशू ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड लॉ. अब सीपीसी ने इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ बताए, पर मिक्स्ड इश्यू ऑफ फैक्ट एंड लॉ नहीं बताए. तो आपको ध्यान में रखना है कि इशू तीन तरीके होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट, इश्यूज ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड लॉ. ये बिल्कुल वैसा ही है, लाइक देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ,
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. जैसे वो लॉ का होता है कि कोर्ट में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. वैसे इश्यूज भी 3 तरीके के बनते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट, इश्यूज ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड लॉ. नॉनदलेस आगे बढ़ते हैं, जुरिसडिक्शन पे ध्यान देते हैं. व्हाट डज जुरिसडिक्शन मीन्स? In simple word, it means power or authority of the court to hear and determine a cause, to adjudicate and exercise any judicial power in relation to it. In other words, jurisdiction means the extent of the authority of the court to administer justice prescribed with the reference to the subject matter, pecuniary value and territorial limits. Alright, this term is very important because the first topic after this definition that we will deal with is the jurisdiction of the courts. Always remember one more thing, consent can neither confer nor take away the jurisdiction of the court. Now in what sense am I speaking this? Let us suppose you and me have a contract. ठीक है, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. आप बोलते हो कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो तमिलनाडु में हम लोग सू करेंगे एक दूसरे को. ठीक है, हमारे और आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, वी विल सू ईच अदर इन द कोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु. हम लोग बिजनेस कहाँ पे कैरी ऑन कर रहे हैं? दिल्ली में. रह कहाँ रहे हैं? दिल्ली में. सारा कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज कर रहा है? दिल्ली में. तो किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के पास तो किस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होना चाहिए? दिल्ली की कोर्ट्स के पास. ठीक है, तो हम अगर आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि नहीं हम तमिलनाडु की कोर्ट को जुरिसडिक्शन देते हैं, तो वी कैन नॉट कन्फर द जुरिसडिक्शन टू द कोर्ट विच हैज नन. क्योंकि जुरिसडिक्शन को कन्फर करने की ताकत सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होती है और किसी के पास नहीं. The authority and the power to confer the jurisdiction is the legislature and no other. So always remember, consent can neither confer nor take away the jurisdiction of the court. If Delhi courts have jurisdiction in our particular cause of action, then by mutual agreement we cannot oust their jurisdiction. But there is a technicality in that. अभी मैं explain करूँगा, jurisdiction के chapter से सबसे पहले deal करेंगे हम लोग. The next term that you should know is plaint. What is a plaint? Plaint is a statement of claim, a document or a memorial by the presentation of which a suit is instituted. It contains the grounds on which the assistance of the court is sought by the plaintiff. It is the pleading of the plaintiff. ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. The plaint is the pleading of the plaintiff. और क्या एलिमेंट्स हैं इसके? It contains a statement of a claim. It is a document or a memorial by the presentation of which a suit is instituted. ठीक, सेक्शन 26 का ध्यान रखिएगा इसके कंटेक्स्ट में, जो बड़ा एक्सप्रेसली कहता है कि every suit shall be instituted by the presentation of plaint or in such other manner as may be prescribed. Every plaint, a fact shall be proved by an affidavit. This has to be read with Order 7 of CPC. Now the other thing that you need to know is, what does written statement mean? Written statement is a reply of the defendant to the plaint filed by the plaintiff. This is a pleading of a defendant dealing with every material fact of the plaint. ठीक है, it may sometimes contain new facts in the favor of the defendant or legal objection against the claim of the plaintiff. It is in essence a pleading of defendant. Now there are two other things that are practically existing but has not been discussed at all by CPC. That is replication and rejoinder. What is a replication? Replication is a pleading by plaintiff in answers to the defendant's plea. And rejoinder is a second pleading by the defendant in answers to the plaintiff's reply to the replication. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कुछ हो सकता है न्यू फैक्ट्स क्लेम किए हों, तो प्लेंटिफ एक रेप्लिकेशन फाइल करता है जिसमें वो डिफेंडेंट्स की जो नए फैक्ट्स हैं उसका एक आंसर देता है. ठीक है, सो रेप्लिकेशन इज व्हाट? इट इज अ प्लीडिंग बाय प्लेंटिफ. एंड रिजॉइंडर इज व्हाट? इट इज द सेकेंड प्लीडिंग बाय द डिफेंडेंट इन आंसर टू द प्लेंटिफ्स रिप्लाई. कि जो चीजें
प्लेंटिफ ने अपने रेप्लिकेशन में लिखी हैं उसका आंसर देने के लिए डिफेंडेंट एक रिजॉइंडर फाइल करता है। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। अभी सारी चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता है, एंड दैट इज़ वाई इफ अ स्टूडेंट एग्जामिनी और समबडी हु गोज टू द कोड व्हेन ही फाइंड्स ऑल दिस इज़ वेरी कंफ्यूज्ड कि ये सारी क्या चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ एंड राइट हियर कि ये सब क्या होता है। ठीक है, सो यू वोंट बी हैविंग प्रॉब्लम आइदर इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और इन दी एग्जामिनेशन एस्पेक्ट। अगर DGS या HGS फेस कर लिया और वहाँ पे ऐसा सवाल लिख दिया गया, देन यू वुड बी एबल टू आंसर दैट। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस टर्म्स की मीनिंग ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेप्लिकेशन इन आंसर टू अ रिटन स्टेटमेंट हर केस में फाइल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये रूटीन मैनर में तो फाइल ही नहीं किया जाता है। रेप्लिकेशन तब परमिसिबल होता है कि जब पहला व्हेन द लॉ रिक्वायर्स इट, सेकेंडली व्हेन देयर इज अ काउंटर क्लेम और सेट ऑफ व्हिच इज प्लीडेड बाय द डिफेंडेंट, एंड थर्डली व्हेन द कोर्ट डायरेक्ट्स और परमिट्स अ रेप्लिकेशन टू बी फाइल्ड। Then comes the issue that when would court direct the plaintiff to file a replication? See, court would direct or permit a replication being filed when, having scrutinized the plaint of the plaintiff and the written statement of the defendant, the need of the plaintiff joining a specific pleading to a case specifically and which is newly raised in a written statement is felt. ठीक है, जब कोर्ट को लगता है कि in a given set of fact डिफेंडेंट ने कुछ नई तरीके की प्ली ली है या कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन कोर्ट को प्लेंटिफ से चाहिए इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट रिटन स्टेटमेंट, तब कोर्ट में परमिट और अलाउ द प्लेंटिफ टू फाइल अ रेप्लिकेशन। और कोर्ट चाहे, अगर उसे ज़रूरी नहीं लगता है, तो इट में आइदर ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट द लीव टू फाइल अ रेप्लिकेशन। और एक टेक्निकल इशू और भी बता दो रेप्लिकेशन का, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, प्रैक्टिकलिटी के लिए रेलिवेंट है, कि आप रेप्लिकेशंस में कोई ऐसी प्ली नहीं ले सकते जो आपकी ओरिजिनली फाइल्ड प्लेंट के कॉन्ट्राडिक्शन में हो। ठीक है, दे आर नॉट सपोज टू बी द सब्सटीट्यूट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द ओरिजिनल प्लीडिंग्स फर्स्ट, एंड अ प्ली इनकंसिस्टेंट विद द प्ली टेकन इन द ओरिजिनल प्लीडिंग्स कैन नॉट बी परमिटेड टू बी टेकन इन द सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आई कम टू द टर्म समन्स। व्हाट इज अ समन? See, summon is a document issued from the office of the Court of Justice calling upon the person to whom it is directed to attend before a judge or an officer of the court for a certain purpose. It is a written order that legally obliges or compels a person to attend the court of law at a specified date at a specified time. ठीक है? So always remember, it is a compulsive order. If you do not appear in answer to the summon, you know what's in store. Prosecution for section 174 of the IPC, ये आपको याद होगा, इट इज ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। कोर्ट ऑफ लॉ ने समन दिया, नहीं गए, मैक्सिमम सजा 6 महीने की हो सकती है। कीप दैट इन माइंड। सो मोस्टली वी हैव फिनिश्ड विद द डेफिनेशन एंड द टर्म्स। बाकी जितना भी बेयर एक्ट में जो टर्म्स है आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन से क्लॉज में क्या है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो बस एक जनरल अवेयरनेस की बात है। There is nothing conceptual in it. Now we shall deal with the topic of jurisdiction of civil courts. ठीक है? So now we come to the jurisdiction of the civil courts. You need to know this. It is a very, very important topic. See, what is jurisdiction literally? What does it literally means? See, jurisdiction has been derived from the Latin term juris and dicto. It literally means I speak by the law. ठीक है? It has been derived from Latin terms juris and dicto, which means literally I speak by the law. Alright. In context of the courts, it means the power or the authority of the court of law to hear and determine a cause or a matter. It is power to entertain, deal with and decide a suit, an action, petition or other proceeding. In other words, jurisdiction includes the power to hear and decide the question at issue, the authority to hear and decide a particular controversy that has arisen between the parties, and it includes the authority of the court to administer justice prescribed with reference to a particular subject matter, pecuniary value and territorial
limits. Now cometh the question of jurisdiction and consent. Alright. So, before even I begin with that, I will reiterate the position of law again, that the power to grant or take away the jurisdiction is with the legislature and the legislature alone. You should always remember that. Always remember one thing, that the power to create or enlarge jurisdiction is legislative in character. So also the power to confer the right of appeal or to take away the right of appeal. Parliament alone can do it by law, and no court, whether superior or inferior or both combined, can enlarge the jurisdiction of the court or divest a person of his rights of revision and appeal when conferred by the statute itself. Whose terms am I using right now? These are the terms of Supreme Court, these are the words of the Supreme Court as was held in the case of A.R. Antule versus R.S. Nayak. Alright. Citation is AIR 1988 Supreme Court page number 1531. So the Supreme Court is also clear that the power to confer, create or enlarge jurisdiction is a legislative power. It is not a judicial power, it is a legislative power. Judicial power मैं अभी बताऊंगा क्या होती है in context of jurisdiction, but the power to confer, create or enlarge jurisdiction is legislative in character, not judicial or executive in character. याद रखिएगा इसको. The next point I would like to discuss with you is that if the court does not have an inherent jurisdiction, इसके मतलब कि कोर्ट के पास अगर inherent jurisdiction नहीं है, then neither the acquiescence waiver nor estoppel can create it. तो अगर jurisdiction किसी कोर्ट के पास नहीं है और ऐसे कोर्ट ने किसी मैटर पे जजमेंट दे के डिग्री पास कर दी तो क्या होगा? Then in that situation remember that the defect of jurisdiction will go to the root of the matter and strike at the authority of the court to pass the decree. Such fundamental defect cannot be cured by the consent of the parties, and the judgment or order of the court passed would be null and void, and validity thereof can be challenged at any stage, even in the execution or collateral proceedings. अगर किसी कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है किसी मैटर पे डील करने का और उसने उस पर जजमेंट या डिक्री पास कर दी तो वो जजमेंट और डिक्री नल एंड वॉइड होती है. इसका एक एग्जांपल देता हूँ. कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज हैज़ नो पावर टू पास अ डिक्री इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी या टाइटल डिसाइड करने की. कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के पास वो सब पावर्स नहीं है. So let us suppose if the court of small cause were to give a judgment in context of an immovable property या title या उसको partition को लेके decree pass कर देता है. So in that situation the decree of the court of small cause is null and void. तो मान लीजिए ये decree execution के लिए फाइल की जाती है तो even at the stage of execution or even in any collateral proceedings the validity of such decree can be challenged. वरना ordinarily challenge नहीं हो सकती डिक्री. इस तरीके से कोलैटरल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में डिक्री कभी नहीं चैलेंज हो सकती. लेकिन अगर किसी कोर्ट ने जिसके पास अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन ही नहीं है to pass a decree on a particular matter or to give a judgment thereof, then in that situation his decree would be what? Null and void, and its validity can be challenged at any stage. ठीक है, चाहे जितना बड़ा भी कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी हो. ठीक है, वैसे तो ऐसा कोई सिचुएशन आती नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास. मोस्टली व्हाट यू कैन थिंक ऑफ उसके पास जुरिस्डिक्शन होता है उस पर. लेकिन लेट अस सपोज कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मैटर पे जुरिस्डिक्शन दे दिया जिस पे उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, देन दैट डिक्री कुड बी चैलेंज्ड इवन एट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या कहते हैं जजमेंट नहीं दे सकता और डिक्री नहीं दे सकता, और अगर वो देता है तो क्या होगा? हिज डिक्री वुड बी नल एंड वॉइड. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यू कैन कोट दिस. द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कैन नॉट इवन अटैच एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में अटैचमेंट का ऑर्डर देता है, कोई इंजंक्शन उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर करता है या पार्टीशन की डिक्री देता है, इन दैट सिचुएशन उसकी डिक्री क्या होगी? नल एंड वॉइड होगी. और एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं.
in execution stage or in any collateral proceeding thereof. दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि a decree passed by a court without jurisdiction is coram non judice. It is Latin, coram non judice. इसका क्या मतलब होता है? It literally means not before a judge. इस टर्म को यूज किया जाता है टू इंडिकेट दैट अ लीगल प्रोसीडिंग इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द जज. ठीक है, लिटरल इसका मतलब होता है नॉट बिफोर अ जज, बट इस लीगल टर्म जिस तरीके से यूज किया जाता है वो इसका इंडिकेशन दिया जाता है कि द जज does not has the jurisdiction to entertain this particular matter. ठीक. Now I come on a locus classicus, that is Kiran Singh versus Chaman Paswan. Very important case that you have to quote. पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें से आपको कोट क्या करना है. ठीक है, so you have a basic idea that what you need to quote in this case. In Kiran Singh versus Chaman Paswan, it was categorically held that it is a fundamental principle well established that a decree passed by court without jurisdiction is a nullity, and its invalidity could be set up whenever and wherever it is sought to be enforced or relied upon, even at the stage of execution and even in collateral proceedings. I have already told you all of that. A defect of jurisdiction, whether it is pecuniary or territorial, or whether it is in respect of the subject matter of the action, strikes at the very authority of the court to pass a decree, and such defect cannot be cured by the consent of the parties. ये जनरल पोजीशन है. अब मैं इस पे एक आपको चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि सीपीसी जो पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का डिफेक्ट है वो उसको उतना सीरियसली नहीं लेती जितना सब्जेक्ट मैटर का डिफेक्ट. तो आप इस लाइन को जब भी किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान की पढ़ें, ये इस कंटेक्स्ट में पढ़ें, मॉडर्न कंटेक्स्ट में, कि जो सीपीसी है वो सब्जेक्ट मैटर को ही प्रेसिडेंस देती है, वो पेक्यूनरी और टेरिटोरियल डिफेक्ट्स को उतना सीवियर नहीं मानती. इट डजंट केयर दैट मच. अभी हम जब आगे सीपीसी पढ़ेंगे देन यू विल गेट एन आइडिया व्हाई आई एम सेइंग सो. In fact, section 21 and 21A are direct answer to your curiosity if you are so curious to know. But आगे we will deal with that. Not right now. Right now is not a good time to deal with that. So, always remember, modern context में इस लाइन को क्वालिफाई ज़रूर करिएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन वेदर पेक्यूनरी और टेरिटोरियल और वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर स्ट्राइक्स एट द वेरी अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू पार्ट एनी डिक्री, एंड सच डिफेक्ट कैन नॉट बी क्योर्ड इवन बाय द कंसेंट ऑफ पार्टी. ये किस सेंस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये समझाना ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली इस केस के जो फैक्ट्स हैं उसके सेंस में कह रहा है कि डिफेक्ट होता है. ठीक है, लेकिन ये एकदम अलग बात है कि जो सब्जेक्ट मैटर का जो एरर होता है, जो सब्जेक्ट मैटर का जो जुरिसडिक्शन होता है, वो अगर आपके पास नहीं है एज अ जज, तो आपकी डिक्री नल एंड वॉइड है. पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के डिफेक्ट पे वैसा नहीं होता. अब मैं आपको किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के फैक्ट बता देता हूँ हुआ क्या था इस केस में. देखिए, सिंपली इस केस के फैक्ट बताता हूँ. इसमें यह हुआ था कि जो प्लेंटिफ था उसने डिलिबरेटली अपना जो सूट था वो अंडर वैल्यू किया. ठीक है, कि मतलब मान लीजिए सूट का अमाउंट है 20,000 का, उसने जानबूझ के 8 से 9,000 का दिखाया, 20,000 का टोटल अमाउंट नहीं दिखाया. फिर जो केस था वो ट्राई हुआ सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने, अपील गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये दोनों जगह हार गए. ठीक है, ट्रायल कोर्ट में हारे, अपील की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहाँ पे भी हार गए. फिर इन्होंने सेकंड अपील प्रेफर की ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट के सामने इन्होंने पहली बार एक ग्राउंड लिया कि जो क्लेम है उसका तो करेक्ट वैल्यूएशन 20,000 से ज़्यादा है. ठीक है, इस केस में एक्चुअल वैल्यूएशन 9,980 रुपये का होना था, पर इन्होंने लोअर कोर्ट में अपना जो वैल्यूएशन दिखाया वो 1,950 रुपये का दिखाया था. तो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के हिसाब से कोर्ट्स भी बदलते रहते हैं ना, कि लोअर कोर्ट के पास इतने से इतने अमाउंट को डील करने का जुरिसडिक्शन होता है, एपेलेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या कहते हैं सेशंस डिस्ट्रिक्ट जज के पास इतने से इतने अमाउंट को डील करने का जुरिसडिक्शन होता है. दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो इन्होंने डिलिबरेटली अंडर वैल्यू किया था. पहले इन्होंने सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस फाइल किया, सोचा मेरे फेवर में जजमेंट आ जाएगा, इनके खिलाफ आ गया. फिर इन्होंने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपील हार गए. सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंटरटेन किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में इन्होंने पहली बार ग्राउंड लिया कि ओरिजिनल जो अमाउंट था वो इतना था.
ठीक है, और अंडर वैल्यू किया गया था, और जो करेक्ट अमाउंट है सूट प्रॉपर्टी का वो इतना है। फिर ऑब्जेक्शन लेने के बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि करेक्ट अमाउंट ऑफ सूट इतना है तो वो अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जानी चाहिए थी, वो अपील हाई कोर्ट के पास आनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट के जो रूल्स बने थे उसके हिसाब से कि अगर सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट इतना है तो अपील जाएगी हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये दिखाना चाह रहे थे कि जो प्रॉपर अमाउंट था सूट का वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के एपेलेट जुरिडिक्शन के पेक्यूनरी लिमिट के बाहर था, तो ऐसे सिचुएशन में जो अपील आनी चाहिए थी वो डायरेक्टली कहाँ आनी चाहिए थी, हाई कोर्ट में। तो ऐसे में डिक्लेयर कर दीजिए द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज टू बी वॉइड, ये इन्होंने डिक्लेरेशन मांगा। और इनका बस पूरा मेन यही कहना था कि क्योंकि एक इंफीरियर कोर्ट ने उनकी अपील सुनी है जबकि सुननी हाई कोर्ट के द्वारा चाहिए थी, सो दे हैव बीन प्रेजुडिस्ड। ये मेन इनका ग्राउंड था। इनको खैर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिली, तो ये किसी भी तरीके से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स और केस और लॉ एग्जामिन किया एंड देन इट referred to section 21 of the CPC and section 99 of the CPC. After examining that, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। अब देखिए, सेक्शन 21 ऑफ द CPC कहता है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been consequent failure of justice. ठीक, फिर साथ में नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट विद रेफरेंस टू पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity etc etc. तो ये पेक्यूनरी लिमिट का मैटर है इसमें, तो इस सेक्शन पे गौर करने वाला है। नाउ सुप्रीम कोर्ट रेड सेक्शन 21 in reference to section 99 of the CPC. Now section 99 of the CPC says that no decree shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in an appeal or an account for any misjoinder or non-joinder of the parties, cause of action, or any error, defect or irregularity in any proceedings in the suit not affecting merits of the case and jurisdiction of the court. अब ये सेक्शन 99 का वो मेन पॉइंट है जिस पे ये डिसीजन हेल्ड हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियर चेंज ऑफ फोरम से यहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि देयर हैज बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्शन 99 ऑफ द CPC says whatever I explained to you right now. मैंने सेक्शन रीड कर दिया, फिर उन्होंने सेक्शन रीड किया, फिर बोला कि सेक्शन while providing that no decree shall be reversed or varied in an appeal or on account of defects mentioned therein which do not affect merits of the case except from its operation defect of the jurisdiction. Section 99 therefore gives no protection to the decree passed on merits when the courts which passed them lacked jurisdiction as a result of overvaluation or undervaluation. In context of that, Supreme Court referred to section 11 of the Courts Valuation Act itself. Courts Valuation Act भी उसने रेफर की, और Courts Valuation Act का जो सेक्शन 11 था उसमें लिखा था, उसमें एक सिचुएशन थी कि अगर कोई भी चीज़ कि कोई भी ऑब्जेक्शन टू द जुरिडिक्शन लिया गया है विच इज़ बेस्ड ऑन ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, तो वो ऑब्जेक्शन फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेना चाहिए, और अगर आपने नहीं लिया तो इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट. Then the Supreme Court said that the policy underlying section 2199 of the CPC and section 11 of the Suits Valuation Act is the same, namely that when the case has been tried by the court on merits and the judgment rendered, then it should not be liable to be reversed purely on technical grounds unless it has resulted in failure of justice. And the policy of the legislature has been to treat objections to the jurisdiction, both territorial and pecuniary, as technical and not open to consideration by an appellate court unless there is prejudice on merits. अब सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस और ध्यान से देखा और बोला कि आप लोग प्लेंटिव थे इन एक्शन, आपने डेलिबरेटली अपना सूट वैल्यू किया एट 1950 रुपीज़, और उसके बाद क्या कहते हैं, You raise no objection to the jurisdiction of the court at any time. और जब आपने एक एलैबोरेट ट्रायल करवाया और उसके बाद आप हार गए, तब ये आप ही थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील पे गए थे, ठीक है,
focusing yourself on that valuation. Then when you went to the High Court for the first time, then you raised this ground that the district judge was not competent to hear your appeal, and it was the High Court who should have listened to your appeal. Then the Supreme Court said that it would be an unfortunate state of law if the plaintiff who initiated the proceedings in a court of their own choice could subsequently turn around and question its jurisdiction on the ground of error in valuation, which was their own. If law were that the decree of the court, which would had no jurisdiction over the suit or appeal, but for overvaluation or undervaluation should be treated as a nullity, then of course they would not be stopped from setting up the want of jurisdiction in the court by the fact of having themselves invoked it. But that, however, is not the position under section 11 of the Suits Valuation Act. So मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट ने इनको यही बोल दिया कि जो mere change of forum हुआ है, इसकी वजह से you have not suffered any prejudice on merits. सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से सेक्शन को रेफर किया था to come to this conclusion? 21 of CPC, section 99 and section 11 of the Suits Valuation Act, and then came to this conclusion. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इशू नलिटी का नहीं है, यहां पे इशू है मेयर चेंज ऑफ फोरम का इशू. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर लॉ ये होता कि अगर आपने अपना क्लेम अंडर वैल्यू कर लिया है, ओवर वैल्यू कर दिया है, और ऐसी सिचुएशन में डिक्री को नल एंड वॉइड माना जाना चाहिए और ये पोजीशन होती लॉ की, तो पोजीशन डिफरेंट होती, देन द पोजीशन वुड हैव बीन डिफरेंट. बट दैट इज नॉट द पोजीशन ऑफ लॉ, क्योंकि इट्स merely a technical ground, and section 11 of the Suits Valuation Act has been enacted for the very purpose to make sure that a decree passed by a court which is competent to entertain the subject matter of the suit is not defeated by a mistake of overvaluation or undervaluation or by a deliberate overvaluation or undervaluation by the plaintiff. ठीक है? So even in Supreme Court the plaintiff got no relief. So I hope you understand कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे nullity क्यों नहीं है. प्लेंटिफ का सिंपल सा ग्राउंड ये था कि मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने अंडर वैल्यू किया और मेरी अपील डायरेक्टली हाई कोर्ट को जानी चाहिए थी, बट मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद जब मैं सेकंड अपील में गया हाई कोर्ट पे, तब मैंने पहली बार ये ग्राउंड रेस किया. मोटा मोटा यही उसकी प्लीडिंग से निकल रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने उनको यही बोला कि देखिए अपील में आपको ढंग से सुना गया, एलैबोरेटली सुना गया, वही काम हाईकोर्ट भी करता, ऑलराइट, और आपने डेलिबरेटली अपना सूट अंडर वैल्यू किया था और उसी के बेसिस पे आप गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने. सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज को सपना तो नहीं आएगा कि आपका सूट अंडर वैल्यूड है. आप गए, आपने उधर किया, क्या कहते हैं, अपील फाइल ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेलिबरेट अंडर वैल्यूएशन. Now you cannot be allowed to turn around and say कि वहाँ पे defect of jurisdiction था, because अगर हम मान भी लें आपकी बात कि district judge was incompetent to hear your appeal, then in that situation also section 11 of the Suits Valuation Act, when read together with section 21 and 99 of the CPC, cures that defect. ठीक है? section 11 of the Suits Valuation Act क्या कहता है? It merely provides that the objections to the jurisdiction of a court based on overvaluation or undervaluation shall not be entertained by the appellate court unless there has been failure of justice. ठीक है? अब ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो एक्ट है वो थोड़ा एलैबोरेट होकर बात करती है. तो देखिए आपके पर्पज़ के लिए सेक्शन 11 ऑफ द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है. अच्छा, होता क्या है कि किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान में लोग जब केस के बारे में बात करते हैं, सो दे डू नॉट रियलाइज कि यहाँ पे जो की एलिमेंट प्ले किया था वो सेक्शन 11 ऑफ द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट ने किया था. अब किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान को जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट पे जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा कोट किया जाता है. पर ऐसे में होता क्या है ना कि लोगों को ये नहीं पता है कि किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था. वो बेसिकली इतना कह देते हैं कि मियर चेंज ऑफ द फोरम कैन नॉट बी सेट टू कॉज द प्रेजुडिस टू द अक्यूज पर्सन. ये उनका सीधा सा स्टेटमेंट होता है. ये बात तो सही है कि मियर चेंज ऑफ द फोरम कैन नॉट बी सेट टू कॉज प्रेजुडिस टू द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इन दिस केस, सॉरी नॉट द अक्यूज पर्सन.
यहाँ पे हमें सिविल प्रोसीजर्स की टर्मिनोलॉजी की बात करना है, तो वहाँ पे लोग क्या लिखते हैं या लोग क्या जनरली जानते हैं कि मेयर चेंज ऑफ फोरम कैन नॉट बी सेट टू कॉज प्रेजुडिस टू आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये ऐसा वो लिख के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रीजन नहीं जानते कि क्यों ऐसा है। उसका रीजन ये है कि सेक्शन 11 ऑफ द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था व्हेन रेड इन कंटेक्स्ट टू सेक्शन 99 एंड सेक्शन 21 ऑफ द सीपीसी, और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रू किया सर। सो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू द नुआंसेस दैट वाज कंटेन्ड विद इन दिस केस लॉ, ठीक है, क्योंकि केस लॉ इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कोई आपसे डिटेल में सवाल पूछ ले। सो आई वांट यू टू नो more than anyone else. That is why I explained this case law in detail. So all in all, we can move forward and understand the next point. अब next point पे आते हैं कि where a court has jurisdiction to decide a dispute, the same cannot be taken away or ousted by the consent of the parties. ठीक है, an agreement to oust absolutely the jurisdiction of the court would be unlawful and void as being against the public policy. It would be hid by the maxim ex dolo malo non erector actio, for an immoral cause no action arises. अब इसके लिए एक चीज याद रखिएगा, मैंने अभी क्या बोला कि an agreement to oust absolutely the jurisdiction of the court would be unlawful. It would be hid by section 23 of the Indian Contract Act. Section 23 of the Indian Contract Act. ठीक है, बिकॉज इट वुड बी अपोज, ऐसा एग्रीमेंट वुड बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इट वुड बी हिड बाय सेक्शन 23 एंड हेंस वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड, सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते टू आउस्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर आप बनाते हैं इट वुडंट अफेक्ट द कोर्ट एट ऑल और वो वॉइड होगा पूरी तरीके से। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी टू मेक सच एन अग्रीमेंट। बट अब मैं आपको इसका एक एक्सेप्शन बताता हूँ। पहला एक्सेप्शन है इस केस का, इनफैक्ट द ओनली एक्सेप्शन, दैट इज द हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड। ये केस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, अब इसमें पोजीशन ऑफ लॉ बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन है टू एंटरटेन अ सूट, then it would be open to the parties to select a particular forum and exclude the other forums. ठीक है, अब इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझिए। अब मान लीजिए there are 5 courts, ठीक, और कॉज ऑफ एक्शन जो आपका अराइज होता है उन 5 कोर्ट्स के बीच में होता है। ठीक है, लेट अस सपोज ऑल 5 कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू डील विद योर केस, उनके पास जुरिसडिक्शन है, सीपीसी के सेक्शन 20 के सारे ग्राउंड सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनके पास एक कॉज ऑफ एक्शन आ जाता है। लेट अस सपोज एक इमेजिनरी सिचुएशन रखिए कि 5 कोर्ट्स हैं, 5 के पास जुरिसडिक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि उन 5 में से कहाँ सू किया जाएगा, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव द अथॉरिटी टू मेक एन एग्रीमेंट विद द पार्टी टू whom you intend to sue, and the agreement would be lawful if it prescribes that out of those 5 courts you will choose one court and exclude all the other. ठीक, ये सिचुएशन अलाउड है कि 5 में से आप एक चुनते हो, उन पांचों में अगर क्या कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है या द डिफेंडेंट रिसाइड्स देयर, सो दैट इज अप टू द पार्टीज दैट व्हाट दे एग्री अपॉन। ऐसे में जब आप आउस्टर क्लॉज फ्रेम करेंगे तो आउस्टर क्लॉज में लिखा होने चाहिए कि only the court of that particular place would have the jurisdiction, या that court alone would have the jurisdiction, yeah, all disputes would be subject to exclusive jurisdiction of that particular court, insert the name whatever you want. So the words like alone, only and exclusive should be used while you are framing an ouster clause in a contract. ठीक है, वैसे generally तो without such words also the court can have resort to the maxim expressionis et exclusio alteris, that is expression of one is the exclusion of another.
बट जनरली जो कोर्ट आउस्टर क्लॉजेस है ना उनको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करता है. सो इट इज़ बेटर दैट यू राइट देम एक्सप्रेसली. अगर जनरली अलोन, ओनली और एक्सक्लूसिव मिसिंग है ना तो शायद आउस्टर क्लॉज आपका फेल कर जाएगा वहाँ पे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि देखिए, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन अराइज नहीं कर रहा उस कोर्ट को आपने जुरिस्डिक्शन देने की कोशिश की, देन इन दैट सिचुएशन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड. आप कन्फर नहीं कर सकते, वो लेजिस्लेचर ही कन्फर कर सकता है. अब मान लीजिए सारा कॉज ऑफ एक्शन पार्टीज दिल्ली में रिसाइड करती हैं और आप अग्रीमेंट कर रहे हो कि जो भी डिस्प्यूट होगा हम तमिलनाडु में रिजॉल्व करेंगे. तमिलनाडु की कोर्ट के पास ना कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर रहा है, ना पार्टीज डिसाइड करती हैं वहाँ पे, ना डिफेंडेंट डिसाइड करता है. सो व्हाई वुड, ना वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हुआ है. तो ऐसी सिचुएशन में तमिलनाडु की कोर्ट्स के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है. एंड इवन इफ यू मेक एन एग्रीमेंट यू कैन नॉट कन्फर अ जुरिस्डिक्शन ऑन देम. पर दिल्ली की कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है. तो अब मान लीजिए आप अग्रीमेंट में ये लिखें कि दिल्ली की किसी भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा टू एंटरटेन द सूट, या किसी भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा टू एंटरटेन द सूट इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज. ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है. इट वुड बी हिट बाय सेक्शन 23. एन एग्रीमेंट टू oust absolutely the jurisdiction of the court is void. ठीक, ex dolo malo non rector actio. For an immoral cause no action arises. However, अगर दिल्ली में मान लीजिए बहुत सारी कोर्ट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, 5, 6, 7 हैं, और आप रहते हैं मान लीजिए एक कोर्ट के एरिया में, आप मान लीजिए डिफेंडेंट हैं, आप एज अ डिफेंडेंट एक कोर्ट के एरिया में रहते हैं, प्लेंटिफ दूसरे एरिया में रहता है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन किसी तीसरे एरिया में अराइज हुआ. तो लेट अस सपोज मान लीजिए कि ऑल इन ऑल 5 कोर्ट्स हैं विच कैन एंटरटेन द डिस्प्यूट विच इज बिटवीन यू एंड द प्लेंटिफ. तो ऐसी सिचुएशन में उन 5, इट इज परमिसिबल टू मेक एन एग्रीमेंट कि आप उन 5 में से एक कोर्ट को चूज करें वेयर यू विल डिफेंड द सूट और वेयर द प्लेंटिफ विल प्रोसीड विद द सूट. ठीक है. सो ऐसा करना परमिसिबल है, एंड इट हैज बीन परमिसिबल ड्यू टू द जजमेंट ऑफ हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड. ये लोकस क्लासिकस है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन दिस पॉइंट. अब हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत एक्सप्रेसली बोल दिया था कि इट इज नॉट ओपन टू द पार्टीज बाय एग्रीमेंट टू कन्फर बाय देयर एग्रीमेंट jurisdiction on a court which it does not possess under the code CPC, but where 2 courts or more have under CPC jurisdiction to try a suit or proceeding, an agreement between the parties that the dispute between them shall be tried in one of such courts is not contrary to public policy as in section 23 of the Indian Contract Act, and such an agreement also does not contravene section 28 of the Contract Act. अब सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर अवॉइड टू दैट एक्सटेंट, है ना. तो जो हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड है उसने ये पोजीशन एकदम अथॉरिटिवली हेल्ड कर दी थी कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है, देन इट इज परमिसिबल फॉर द कोर्ट, सॉरी, इट इज परमिसिबल फॉर द पार्टी to have an agreement that dispute between them shall be tried in any one of such courts. That is not hit by either section 23 of the Indian Contract Act or section 28 of the Indian Contract Act. It is not opposed to public policy and also it does not contravene section 28 of the Contract Act. ये पोजीशन ध्यान रखिएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. अब आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स पूछेंगे नहीं, पर मैंने फिर भी आपको स्टडी नोट्स में थोड़ा एडवांस मटेरियल दे रखा है, आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं. बट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन और फॉर द पर्पस ऑफ इवन योर प्रैक्टिस, दिस नॉलेज वुड सफाइस फॉर नाउ. अभी जो आउस्टर क्लॉजेज है ना विच आउस द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, उसके लिए मैं केस बता देता हूँ. ABC लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस AP एजेंसीज. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, इट सेड that it is pertinent to see that where there is an ouster clause in an agreement, then such ouster clause is clear, unambiguous, and it is specified on the basis of accepted notions of the contract that would bind the parties, and unless an absence of ad idem, that is meeting of mind, can be shown, the
the other courts would avoid exercising their jurisdiction. As regards to the construction of the ouster clause, when words like alone, only, and exclusive and the like has been used, there may be no difficulty. Even without such words, in appropriate cases, the maxim expressio unis est exclusio alteris, that is, expression of one is the exclusion of another, may be applied. What is an appropriate case shall depend on facts of the case. In such a case, mention of one thing may imply the exclusion of other. When certain jurisdiction is specified in the contract and an intention to exclude all the other from its operation may in such cases be inferred, it has therefore to be properly construed. अभी देखिए ouster clauses पे बहुत ज़्यादा elaboration की आपको ज़रूरत नहीं for the purpose of examination, yet I am still telling you for the sake of your convenience and just in case you have a curiosity for that. Now let us talk about lack of jurisdiction and irregular exercise of jurisdiction. Always remember that lack of jurisdiction की वजह से, if there is a lack of inherent jurisdiction, then the judgment is rendered nullity. लेकिन मान लीजिए जज ने कोई इशू गलत डिसाइड कर दिया या एविडेंस प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया, देन इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिसीजन नलिटी है. उसका मतलब ये है कि ही हैज एक्सरसाइज्ड हिज जजमेंट इरेगुलरली. ध्यान रखिएगा, जज विद इन इट्स पावर हैज the authority to decide an issue either rightly or wrongly. ठीक है, तो even though उसने गलत डिसाइड किया हो, but the remedy lies in an appeal or revision or in review if allowed by the statute. तो अगर आपने अपील, रिविजन या रिव्यू की रेमेडी नहीं उठाई और आप कहते हैं कि जज का डिसीजन गलत है, और हो सकता है वो इन फैक्ट गलत हो, so in that situation you cannot avoid the enforcement of the decree against you. Because judge within its jurisdiction has the authority to decide an issue either rightly or wrongly. अगर उसने गलत भी डिसाइड कर दिया है, जस्ट इन केस वो उसके पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर मान लीजिए उसने इशू किसी फैक्ट पे गलत डिसाइड कर लिया, इम्प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस या किसी और कारण की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिक्री और नलिटी नहीं होगी. ठीक है, ये जजमेंट है उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का. बड़े अथॉरिटेटिवली कोर्ट ने बोला था कि the power to decide with it necessarily carries with it the power to decide wrongly as well as rightly. तो अगर गलत डिसाइड किया है, go in an appeal or revision or a review if it is allowed. Otherwise the enforcement of the decree cannot be stopped. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन से, कि जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है ही नहीं. अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है टू एंटरटेन द सूट, तो ऐसी सिचुएशन में डिक्री नलिटी हो जाती है. लेकिन जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन अ सूट और सूट गलत डिसाइड किया है, तो आप अपील, रिवीजन या रिव्यू में जाइए, अदरवाइज डिक्री वैलिड और एनफोर्सिबल है. ठीक है, अब ये पॉइंट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर ये जानकारी के लिए आपको रखना चाहिए और अवेयरनेस के लिए रखना चाहिए. अब सवाल उठता है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन? कैसे डिटरमाइन होता है कोर्ट का जुरिस्डिक्शन? तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हमेशा याद रखिएगा, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट. ठीक है, इट इज अ सेटल्ड लॉ दैट jurisdiction of the civil court are decided on the basis of averments made in the plaint. You do not determine the jurisdiction of the court on the basis of the written statement of the defendant, but you determine on the basis of what? Of the averments made in the plaint. You just note it down somewhere and just keep that in mind. अब एक केस बताता हूँ आपको एज एन इलस्ट्रेशन. एक केस है, वो है अब्दुल्ला बिन गलप्पा. वेरी इंटरेस्टिंग केस. अब इसमें प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया इन अ सिविल कोर्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ हिज टाइटल एंड फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मीन प्रॉफिट्स एंड वांटेड अ डिक्लेरेशन दैट द डिफेंडेंट्स आर ट्रेसपासर्स एंड बी एविक्टेड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. ठीक, फिर जो डिफेंडेंट थे उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखा कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो टेनेंट है, तो जुरिस्डिक्शन होगा रेवेन्यू कोर्ट के पास. ठीक है, क्या कहते हैं, जो डिफेंडेंट है उसने जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट का चैलेंज किया. उसने बोला कि एक्चुअल में मैं टेनेंट हूं और जुरिस्डिक्शन होगा किसके पास? रेवेन्यू कोर्ट के पास. अब मैटर इधर उधर गया, इवेंचुअली इट रीच द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला
that there is no denying the fact that the allegations made in plaint decide the forum. The jurisdiction does not depend upon the defense taken by the defendant in his written statement. And on reading of the plaint as a whole, it is evident that the plaintiffs had, at the time of filing the suit, was treating the defendant as a trespasser. And a suit against a trespasser would only lie in a civil court, not in revenue court. We therefore are of the opinion that the allegations made in the plaint are cognizable by civil court. तो हमेशा याद रखिएगा, it is the jurisdiction जो है या नहीं, ये plaint के basis पर determined होता है, not on the basis of written statement. ठीक है? Remember one more thing. On the question of jurisdiction, one must always have regard to the substance of the matter and not the form of the suit. ये देखा जाता है कि substance क्या है मैटर का मेन. ठीक है? इस पॉइंट पे एक प्रॉपर लॉ सुप्रीम कोर्ट ने रायजादा तोपनदास वर्सेस मेसर्स गोरखराम गोकलचंद डिसाइडेड ऑन 22 अप्रैल 1963 में हेल्ड किया था. एक्चुअली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनंती वर्सेस गन्नू का जजमेंट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है उसको अप्रूव किया था एंड पोजीशन ऑफ लॉ बताई थी प्रॉपरली. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वेयर द प्लेंटिफ चूजेस हिज फोरम एंड फाइल्स हिज सूट, if he establishes the correctness of his facts, he will get the relief from the forum chosen. If he frames his suit in a manner not warranted by the facts and goes for his relief to the court, which cannot grant him relief on true facts, he will have his suit dismissed. Then there will be no question of returning the plaint for presentation to the proper court, for the plaint as framed would not justify the other kind of court to grant him the relief. If it is found on a trial on merits, so far as the issue of jurisdiction goes, that the facts alleged by the plaintiff are not true and the facts alleged by the defendants are true, and that the case is not cognizable by the court, there will be two kinds of order passed. If the jurisdiction is only one relating to territorial limits or pecuniary limits, the plaint will be ordered to be returned to the presentation of the proper court. ठीक है? अगर सिर्फ क्या कहते हैं जो जुरिस्डिक्शन का जो डिफेक्ट है वो पेक्यूनरी या टेरिटोरियल लिमिट में, तो जो कोर्ट है केस की सुनवाई में आगे चल के प्लेंट को रिटर्न करने का ऑर्डर दे देगा, क्योंकि ऑर्डर टू रिटर्न द प्लेंट कैन बी गिवन एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज फाउंड दैट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द सूट it is not cognizable by the class of courts to which it belongs, the plaintiff's suit will have to be dismissed in its entirety. अगर ये देख लिया कोर्ट ने कि कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है to entertain that particular suit, then the court will dismiss the suit in its entirety. This is the correct position of law, and always keep this in mind. Raizada Topandas versus Messrs Gorakram Gokalchand. Best case on this point. Now let me tell you another thing. That sometimes what happens is that the jurisdiction of a court, tribunal or authority may depend upon a certain conditions which are to be fulfilled by the person, or which depends upon the existence of a particular fact, and the statute has prescribed that only if those particular facts are laid down, only then and only then that the court, tribunal or authority may entertain the particular suit. ऐसे फैक्टों को बोला जाता है jurisdictional fact. ठीक है? Those facts are called jurisdictional facts. What are jurisdictional facts? Jurisdictional facts are those facts on the basis of which the jurisdiction of a court, tribunal or authority depends upon. जिनको fulfill करना होता है, जब वो fulfilled हो जाते हैं तभी the court, tribunal or authority has jurisdiction to entertain those facts. अगर jurisdictional fact missing है तो क्या होगा? Then the court, tribunal or authority would lack the jurisdiction. ठीक है? So existence of such facts is a sine qua non or condition precedent for assumption of jurisdiction in this case. ठीक है? Sine qua non का मतलब होता है an essential condition. एक और चीज है कि आप क्या करेंगे अगर मान लीजिए कि किसी अथॉरिटी ने रॉन्गली jurisdiction assume कर लिया है जबकि jurisdictional facts हैं ही नहीं उसके फेवर में. What would you do then?
अगर मान लीजिए उस अथॉरिटी ने रॉन्गली जुरिडिक्शन अज्यूम करके जजमेंट दे दिया, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ रिट ऑफ सर्च्योररी टू कॉज सच जजमेंट, और अगर अभी भी वो इट इज पेंडिंग बिफोर इट, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन. ठीक है. अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि कौन डिसाइड करेगा कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं. ऑलवेज रिमेंबर, हर कोर्ट के पास, हर सिविल कोर्ट के पास एक इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होता है टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन. ठीक है, कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा. द पावर टू कन्फर, enlarge or restrict jurisdiction is with whom? The parliament or the legislature. But the power to decide whether the jurisdiction exists or not is with the civil court or the courts in general. ये पावर ट्राइब्यूनल के पास नहीं होती है, ये पावर सिर्फ कोर्ट्स के पास होती है. Only the courts have inherent power to decide the question that whether it has the jurisdiction to entertain and deal and decide with the particular matter before it or not. ठीक है. Now let us talk a bit about exclusion of jurisdiction of civil court. ठीक है, थोड़ा उस पर भी बात कर लें. तो आपको 3 चीजें पहले ही समझ में आनी चाहिए. ठीक है. पहला कि who has the inherent power to decide on the question of its own jurisdiction? That is the civil court itself. Secondly, there is presumption in the favor of jurisdiction. Due to that, जो पार्टी ये बताना चाहती है that the court does not have jurisdiction to entertain a particular suit, the burden of proof would be on him. ठीक है. The party who seeks to oust the jurisdiction of the civil court has to establish it. The burden of proof उसके ऊपर है. ठीक. Presumption of jurisdiction कोर्ट बना के रखता है, and the court has the inherent power to decide on the question of its own jurisdiction. अब इसमें एक लोकस क्लासिकस है, दुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स. व्हाट वर दे? फर्स्ट वाज that when a statute provides finality to the orders of a particular tribunal, the civil court's jurisdiction must kept to be prohibited. Such provision does not eliminate those cases where terms of the acts have not complied with the fundamental laws of judicial method. ठीक. Secondly, when there is an express bar of jurisdiction of the court, an examination of the scheme of the particular act to find the adequacy or sufficiency of the remedies provided may be important, but this is not crucial for maintaining the jurisdiction of civil court. तो मतलब सिविल कोर्ट क्या कर सकता है, अगर देखें कि किसी स्टैट्यूट ने उसका jurisdiction बार कर दिया है, तो it can examine the statute which bars the jurisdiction and refer to the scheme of the act and see कि क्या वो रेमेडी प्रोवाइड की है स्टैट्यूट ने जो सिविल कोर्ट दे सकता है. ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है. सेकेंड प्रिंसिपल है, उसके बाद और भी प्रिंसिपल है दैट यू हैव टू कंप्लाई विद. Third is, civil court examines the terms of specified act, and if it is found by the civil court that the terms of the specific act are illegal or has been declared unconstitutional, then in that situation the suit is open. अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है कि जो स्टैट्यूट के वो टर्म्स हैं या चीज़ें हैं उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, या एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोड का पॉइंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, तो तब सूट ओपन है. ठीक है. नेक्स्ट इज, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, is that the prohibition of jurisdiction of the civil court is not readily to be inferred unless the conditions above set down apply. ठीक है. अब ये केस था टैक्स कलेक्शन पे. ठीक है. टैक्स कलेक्शन हो गया था, एक्सेस में टैक्स कलेक्ट कर लिया गया था, तो ऐसे में था कि ऐसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ से एक्सेस टैक्स कलेक्ट होकर रिटर्न हो जाए. तो ऐसे में क्वेश्चन ये था कि क्या सिविल कोर्ट में केस एंटरटेन हो सकता है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दुल्लाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ये प्रिंसिपल्स दिए थे, और वो जो चीज़ें जो टैक्स से डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं वो प्रिंसिपल्स मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है. तो ऑल इन ऑल ये जुरिस्डिक्शन का इशू था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स वर्सेस केडी वॉडके. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लेके इन रिगार्ड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, और वो बोला था इफ द कन्फ्लिक्ट इज नॉट एन इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट
nor does it relate to the enforcement of any other right under the Industrial Dispute Act that the remedy would only lie in civil court. तब रेमेडी सिर्फ सिविल कोर्ट में लाई करेगी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो नहीं फॉल करती. Secondly, if the conflict is an industrial conflict emerging out of right or liability under general or public law, the jurisdiction of the court is an alternative left to the person involved to decide his remedy for support which is sufficient to be given in a particular remedy. If an industrial dispute relates to the implementation of a right or duty organized under the act, then only remedy available is to get an adjudication under the act. तब सिविल कोर्ट की रेमेडी नहीं है. अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर का कोई मैटर है एक्सप्रेसली और उसी की इम्प्लीमेंटेशन या उसी की किसी ड्यूटी को लेके कोई बात है तो फिर एक ही रेमेडी अवेलेबल होगी ऐसे केस में, और वो क्या होगी, that the worker or any person who is subject to the jurisdiction of Industrial Dispute Act has to apply and comply with the Industrial Disputes Acts and had to apply before a labor court. ठीक है. अब इस पे और भी केस हैं लेबर डिस्प्यूट वाले इन रिलेशन टू द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल कोड कि किसके पास जुरिस्डिक्शन रहेगा और किसके पास नहीं रहेगा, जैसे राजस्थान SRTC वर्सेस कृष्णाकांत. लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है आप लोग के लिए. ठीक है. इसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे जो इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट कि सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन कब एक्सक्लूड होगा और कब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स का जुरिस्डिक्शन होगा, बट आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है. प्राइमरली आपके लिए सिर्फ कौन सा जजमेंट रेलेवेंट है, दैट इज दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि एज इट इज आ जाता है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, जब भी दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आए, यू हैव टू जस्ट मेंशन इट्स प्रिंसिपल्स एंड यू आर डन. ठीक है. बाकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले मैटर्स में आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की, इनफैक्ट डिटेल में ही जाने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स वर्सेस KD वाट के कोट कर दीजिएगा, दैट्स इट. ठीक है. पूरा नाम है केस का प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड वर्सेस कामेलकर शांताराम वाटके. ठीक है. सो डू नॉट वरी अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और सिविल कोर्ट्स वाले पे, उस पर उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो उसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है. मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP का जजमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP का जजमेंट, ये प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स आपको याद होने चाहिए. उसमें जो उस प्रिंसिपल्स में जो टैक्स की मशीनरी की बात की गई है, आप उसको ऑल इन ऑल ना भी मेंशन करें तो चलेगा, लेकिन जो मेन जो प्रिंसिपल्स जो ले डाउन किए गए हैं ना, जैसे कि वेयर द स्टैट्यूट गिव्स फाइनलिटी टू द ऑर्डर्स ऑफ द स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, द सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन मस्ट बी हेल्ड टू बी एक्सक्लूडेड इफ देयर इज एडुकेट रेमेडी टू डू व्हाट द सिविल कोर्ट्स वुड नॉर्मली डू. Such provisions, however, does not exclude those cases where the provisions of the particular act has not been complied with or statutory tribunal has not acted in the conformity with the fundamental principles of judicial procedure. ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस का कि when there is a express bar of jurisdiction of the civil court, an examination of the scheme of the particular act to find the adequacy or sufficiency of the remedies provided may be relevant, but it is not decisive to sustain the jurisdiction of civil court. So make sure that इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें. दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP का हमेशा ध्यान रखिएगा when it comes to the exclusion of the jurisdiction of civil court.